All right, students. So this is a new numerical that I came across while I was going through the solved numericals I had. It is based on flat belt. In last class, I had told you that that from next class we will start with V belt. But then I went through the questions that were being asked in RTMNU exam, and also a few of the solved numericals that I had. At that time, I came to know that there are roughly two types which are new and haven't been taken in the class. So today I'll be completing with one out of those two remaining types, and I think on 25th we have a lecture from 9:30 to 10:15, wherein I will cover the second remaining type. Okay, so that in RTMNU exam we should be in a position to attempt any question that might be asked on flat belt drives. Now about flat belt drives, let us start with this numerical. The problem statement is like, design a flat belt drive to transmit 8 kilowatt. This is 8, ठीक है ना? This is 8. ये जो number है, this is 8 kilowatt. 8 kilowatt from a pulley running at 450 RPM to another pulley running at 200 RPM. पहली स्टेटमेंट से हमको न्यूमेरिकल का जिस्ट थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए कि ड्राइविंग पुली इज रनिंग एट हायर RPM and another pulley, which is driven pulley, is run at 200 RPM. The straightforward meaning is the driving pulley is the smaller pulley and the driven pulley is the larger pulley. ठीक है, उसके हिसाब से जैसे हमने अब तक के नोटेशन चेंज किए यूज किए हुए हैं, subscript 1 will denote the smaller pulley, smaller in the sense in terms of diameter, and number 2 will denote the pulley which is larger in diameter. So likewise we have N1, which is RPM of smaller pulley, which is faster pulley, whereas N2 will be the RPM of larger pulley, and hence the value of N2 will be smaller. Fine. We all know diameter and RPM are inversely proportional, so D2 by D1 should be equal to N1 by N2. ठीक है, तो RPM ज्यादा दिखेगा, डायमीटर कम, डायमीटर ज्यादा दिखेगा, RPM कम. लाइक रेटेड पावर इज 8 किलोवाट. तो पहली लाइन से हमको रेटेड पावर और कौन सा पुली चला रहा है, कौन सा पुली चल रहा है, कौन सा पुली कितने RPM पे चल रहा है, कौन सा पुली छोटा है, कौन सा पुली बड़ा है, ये फर्स्ट सेंटेंस से यूजुअली फ्लैट बेल्ट के प्रॉब्लम्स में पता चल जाता है. ठीक है, उसके बाद बोला गया है यूज सुटेबल मटेरियल एंड जॉइंट. ठीक है, दैट मीन्स मटेरियल और जॉइंट हमको सिलेक्ट करना है. Design belt tension, meaning you have to find out three values, that is F1, that is tension on the tight side, F2, that is tension on the slack side, and Fi, that is initial tension. Pulleys, shafts and keys, that means you have to design this flat belt drive completely, part A and part B. That is you have to find out width of the belt, thickness of the belt, length of the belt, and after that you also have to do pulley design. ठीक है, assume medium shock load. So given data में आप देख सकते हो, रेटेड पावर हमने 8 किलोवाट लिख लिया, N1 450 लिख लिया, N2 200 लिख लिया. उसके बाद में यूज सुटेबल मटेरियल एंड जॉइंट बोला हुआ है, तो वी एज्यूम्ड बेल्ट मटेरियल एज लेदर, वी एज्यूम्ड बेल्ट जॉइंट एज वायर लेस्ड बाय मशीन. दिस टू आर द एजम्पशंस. वी अगेन एज्यूम्ड वन थिंग, दैट द पुली मटेरियल इज कास्ट आयरन. पुली मटेरियल कास्ट आयरन और लेदर बेल्ट मटेरियल लेदर, ये कॉमन एजम्पशंस है. यूजुअली बेल्ट मटेरियल न्यूमेरिकल में दिया रहता है, नहीं दिया रहा तो हम लोग चुपचाप लेदर ले लेंगे. ये मैं पिछले 2-3 न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूँ. सिमिलरली फॉर पुली मटेरियल नहीं दिया रहता है न्यूमेरिकल में, वी विल एज्यूम इट एज कास्ट आयरन. ठीक है, अबाउट द जॉइंट, यू कैन एज्यूम एनी जॉइंट एज पर द लिस्ट. जो अपने पास लिस्ट है जॉइंट और जॉइंट एफिशिएंसी की, आई विल शो इट टू यू, टेबल नंबर 15-6. तो इतने जॉइंट्स अपने पास पॉसिबल है. Cemented by manufacturer, cemented at site, wire laced by machine, wire laced by hand, rawhide laced, metal clamps, metal plate bolts. आप कुछ भी टाइप ऑफ जॉइंट ले सकते हो, बट इट इज सजेस्टेड इफ द जॉइंट इज नॉट गिवन, तो आप ये वायर लेस्ड बाय मशीन और वायर लेस्ड बाय हैंड, इन दोनों में से आप एक सजेस्ट करो. इसका रीजन मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि
जो आपके पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं उनके पास कुछ एक कॉमन एजम्पशन से उनके सॉल्यूशन होते हैं, और वो सॉल्यूशंस यूजुअली इन वैल्यूज से बने होते हैं, वायरलेस बाय हैंड, वायरलेस बाय मशीन से। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है बेल्ट जॉइंट इज वायरलेस बाय मशीन। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि दो बेल्ट जब एंडलेस बेल्ट होता है ना, बिकॉज दिस इज एन एंडलेस बेल्ट, फ्लैट बेल्ट इज एन एंडलेस बेल्ट, वी बेल्ट इज एन एंडलेस बेल्ट, रोलर चेन ड्राइव इज एन एंडलेस ड्राइव, वायर रोप एंडलेस रोप। तो एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, दैट मीन्स उसका लास्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट कनेक्टेड होता है। वो कनेक्ट कैसे होगा? तो वायरलेस बाय हैंड मतलब वो वायर से कनेक्ट होगा, जो अपन शू को लेसेस बांधते हैं उस तरह से, लेकिन दैट मीन्स लेसिंग विद द हेल्प ऑफ वायर, लेस करना विद द हेल्प ऑफ वायर। एंड इट कैन बी डन बाय हैंड, इट कैन ऑल्सो बी डन बाय मशीन। अगर मशीन से करते हैं तो बेल्ट जॉइंट की एफिशिएंसी ज्यादा, अगर हाथ से करते हैं तो बेल्ट जॉइंट की एफिशिएंसी कम। वही हमको इस टेबल में देखने को मिलता है। अब देखो, वायरलेस बाय हैंड की एफिशिएंसी 0.82 है, वेयर एज वायरलेस बाय मशीन की एफिशिएंसी 0.9 है। ठीक है, अनलाइक इन द लास्ट क्लास, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं तो मैं कहीं पे गया ऐसा एजम्पशन बिना करे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है इसके बाद के क्लासेस के लिए। मैं आपको बता के कहीं पे नहीं, आपको बिना बताए कहीं पे नहीं जाऊंगा, इट विल नेवर हैपन। तो थोड़ा सा कीप मी अपडेटेड अगर नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ तो। ठीक है, नेटवर्क फ्लक्चुएशन इज समथिंग दैट इज नॉट इन माय हैंड। आई डोंट हैव वाईफाई एट होम, कांट अफोर्ड इट, सो आई एम रनिंग इट ऑन मोबाइल डिवाइस। ठीक है, ऑलराइट, so let us start with part A. Part A is belt design. We have gone through this. One more thing, जो मैंने आपको बोला था कि ये न्यूमेरिकल में एक चीज नई है, न्यू है, वो ये है कि यहाँ पे कोई भी पुली का डायमीटर नहीं दिया हुआ है। आप देखोगे तो देयर इज नो डायमीटर गिवन। इसके पहले के जो दो न्यूमेरिकल किए उसमें डायमीटर दिया हुआ था, एटलीस्ट ड्राइविंग या फिर ड्रिवन पुली का डायमीटर दिया हुआ था। यहाँ पे डायमीटर अपने पास दिया हुआ नहीं है। ऐसी केसेस में क्या करना, ये अपने को इस न्यूमेरिकल में सीखना है। ठीक है, मैंने जो आपके इस पे पोस्ट डाला हुआ है, आप पोस्ट देख सकते हो। कैन यू सी द टैब वेर इन आई एम शोइंग स्ट्रीम टैब ऑफ गूगल क्लासरूम? Someone please reply. Yes, sir. Yeah. Here also, so as you can see, pulley diameter is not given. So that is something new. So let us start with the belt design part है, जैसे कि मैंने बोला था part D will be pulley design, क्योंकि यहाँ पे pulley design करने बोला है। देखो, अगर यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट आती है पुली डिजाइन की, आपको पुलिस डिजाइन करना है ऐसा बोला उसने, तो थोड़ा सा हम लोग जस्ट ऑलराइट। So as you can see, pulley diameter is not given. So let us continue with the belt design. First of all, we all know, we find out design power as per table number 15-1. Let us open table number 15-1. What is the formula do we have? The formula is PD is equal to PR into KL into K theta. KL is overload service factor that has to be selected from table number 15-2. K theta is capacity coefficient of inclination which has to be selected from table number 15-3. Let us go to table number 15-2. तो यहाँ पे ड्राइविंग और ड्रिवन के हिसाब से हम लोग कौन सा फैक्टर है, ये लोड फैक्टर सिलेक्ट करते हैं। लेट अस सी न्यूमेरिकल में क्या लिखा है। ट्रांसमिट फ्रॉम अ पुली रनिंग एट 450 आरपीएम टू अनदर पुली रनिंग एट 200 आरपीएम। तो यहाँ पे कहीं पे भी ड्राइविंग और ड्रिवन क्या है वो नहीं दिया हुआ है। और ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया था कि आप ड्राइविंग मशीनरी इलेक्ट्रिक मोटर लेते हो और ड्रिवन मशीनरी लाइन शाफ्ट लेते हो। ठीक है, अगर ड्राइविंग और ड्रिवन मशीनरी फ्लैट बेल्ट में नहीं दिया गया है तो देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्या क्या एजम्पशन कहाँ पे लेने हैं ये मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आपको ये चीजों का नोट रखना है। यूजुअली ऐसा होता है कि क्लासरूम में मैं जब पढ़ाता हूँ तब आई आस्क यू पीपल टू राइट इट डाउन इन योर कॉपी। इट इज एक्सपेक्टेड कि ऐसी चीजें आप लिख के रखो कि अगर ड्राइविंग ड्रिवन नहीं दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक मोटर और लाइन शाफ्ट लेना है। ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में लटका सकते हैं। तो ये चीजें अगर लिख के रहे तो हमको थोड़ा सा उसको इजी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो like I said, we will assume driving machinery as electric motor and driven machinery as line shaft, and we will take 1.1 as the load factor, and therefore as you can see here load factor is taken as 1.1. Now we know K theta is a capacity coefficient of inclination. Since nothing is told to us about the inclination of the drive, we will assume that the drive is horizontal. Since the drive is horizontal, angle it makes with the horizontal is 0, and therefore K theta will be equal to 1.
and likewise we have taken k theta equal to 1. ठीक है, so as you can see k theta is equal to 1, pd is equal to pr into kl into k theta, kl is 1.1, k theta is 1, and therefore we get pd, that is design power, as equal to 8.8 kilowatt. ठीक है, now moving to the next thing. अभी ये थोड़ा सा सेकंड लाइन जो है, सेकंड जो स्टेप है, इट इज इम्पोर्टेंट व्हेन द डायमीटर इज नॉट गिवन. ठीक है, नाउ सिंस द डायमीटर इज नॉट गिवन वी कैन नॉट फाइंड पिच लाइन वेलोसिटी. अब तक जो न्यूमेरिकल, अब तक जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से, लेकिन उसके ऊपर जो वे आउट है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. वे आउट ये है कि टेबल नंबर 15-4 में आप देख सकते हो कि पेरिफेरल स्पीड की वैल्यूज दी गई है. कैन यू सी सीरियल नंबर 1? लेट मी हाईलाइट. ये देखिए आप, पेरिफेरल स्पीड सीरियल नंबर 1 फॉर मैक्सिमम पावर एंड इकोनॉमी 1500 से लेकर 1800 मीटर पर मिनट का आपका पेरिफेरल वेलोसिटी वीपी हो सकता है. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्गर बेल्ट लाइफ, तो आपका जो वीपी होना चाहिए, पिच लाइन वेलोसिटी या फिर पेरिफेरल वेलोसिटी, शुड बी बिटवीन 900 to 1200 मीटर पर मिनट. मीटर पर मिनट बोला हुआ. ठीक है, सो इसमें से आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यूजुअल इंक्लिनेशन शुड बी टुवर्ड्स ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर एंड इकोनॉमी. ठीक है, लॉन्गर बेल्ट लाइफ आप तभी सिलेक्ट करोगे अगर न्यूमेरिकल में मेंशन्ड है तो, बट अदरवाइज जनरल इंक्लिनेशन शुड बी, इट शुड बी इन अ पोजीशन टू ट्रांसमिट मैक्सिमम पावर. ठीक है, तो अपने को यहाँ से पता चलता है कि वीपी की जो वैल्यू है, इट हैज टू बी बिटवीन 1500 to 1800 मीटर पर मिनट. ठीक है, दैट मीन्स हम वीपी की वैल्यू 1500 से 1800 के बीच में एज्यूम कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने वीपी का वैल्यू 1550 मीटर पर सेकंड एज्यूम कर लिया. ठीक है, दिस इज एन एजम्पशन वी आर मेकिंग. हम डायमीटर एज्यूम नहीं करते हैं, हम वीपी एज्यूम करते हैं एज पर टेबल नंबर 15-4, एंड दिस इज द हाईलाइट पॉइंट दैट आई हैड टू टेल यू. 15-4 में दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग वीपी सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, नाउ दिस वीपी इज इन मीटर पर मिनट. We will convert it to meter per second. So simple. Let us divide 1550 by 60, and that should give us 25.83 meter per second as the VP in meter per second, in the units of meter per second. So this is a prime step which helps us in solving the numericals wherein pulley diameter is not given. ठीक है, अब आप बोलोगे सर अब तक भी तो अपने पास पुली डायमीटर नहीं आया है, सो व्हाट टू डू? लाइक आई हैड टोल्ड कि जो 1 सबस्क्रिप्ट है वी यूज इट फॉर स्मॉलर पुली. 1 सबस्क्रिप्ट जो है वी यूज इट फॉर स्मॉलर पुली. ठीक है, अपने को ये भी पता है कि पिच लाइन वेलोसिटी हम जो निकालते हैं वो स्मॉलर पुली का निकालते हैं. पिच लाइन वेलोसिटी जो हम निकालते हैं रेगुलर न्यूमेरिकल्स में, वो πdn/60 वाला फॉर्मूला यूज करके, तो उसमें जो डायमीटर और n1 लेते हैं वो d1 n1 लेते हैं. दैट मीन्स स्मॉलर डायमीटर एंड स्मॉलर आरपीएम. सो नाउ अब तक क्या हो रहा था कि हम Vp इज इक्वल टू πd1 n1 डिवाइड बाय 60 into 1000 करके लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे थे. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. Vp का वैल्यू अपने पास है 25.83 मीटर पर सेकंड. राइट हैंड साइड में पाई का वैल्यू है, d1 हमने को निकालना है, n1 अपने पास अवेलेबल है, डिवाइड बाय 1000 into 60. सो बाय यूजिंग Vp इज इक्वल टू πd1 n1 डिवाइड बाय 1000 into 60, we are in a position to find out the value of d1, and those calculations I have made it for you at the bottom. एक सेकंड, आप देख सकते हैं. सो Vp इज इक्वल टू πd1 a1 डिवाइड बाय 1000 into 60. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि d1 इज इक्वल टू Vp into 60 डिवाइड बाय पाई n1. Vp हमने कैलकुलेट किया 25.83 into 60 डिवाइड बाय पाई into n1. n1 इज द आरपीएम ऑफ द स्मॉलर पुली, और अपने को d1 मिला 1.096 मीटर. मीटर इसलिए क्योंकि अपन ने 1000 से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है. व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 1000 वी विल गेट इट एज 1096 mm. I am repeating 1096 mm as the diameter of smaller pulley. ठीक है, बट वो अगली स्टेप में आने वाला है. Now continue with the problem. We know to find out F1 and F2 we require two relations between F1 and F2. One being F1 minus F2 is equal to PD upon Vp. Yes, we have the value of PD from step number 1. We have the value of Vp from step number 2, and therefore we get F1 minus F2 is equal to 340.69 Newton. ठीक है. Now for next relationship, that is F1 by F2 is equal to e to the power mu theta, we require the value of theta. We require the value of theta, and for that we require the value of d2 and d1. Okay,
तो इसलिए आपको पता है कि फोर्थ स्टेप में F1 by F2 is equal to e to the power mu theta करने से पहले हम ये फॉर्मूला लिखते हैं pi d2 n2 is equal to pi d1 n1 into 1 minus s. ठीक है. Now I seriously can't help with that. नहीं सर, अभी बराबर है. तो बीच बीच में थोड़ा सा, ठीक है सर. हाँ ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा होता है, तो प्लीज बेयर विथ मी. ओके, सो अपने को पता है ये पाई d2 n2 इज इक्वल टू पाई d1 n1 होना चाहिए, लेकिन आपको पता है फ्लैट बेल्ट में हम हमेशा 1.5% से लेकर 2% तक का स्लिप जो है वो एज्यूम करते हैं, और इस तरह से कुछ अपना फॉर्मूला बनता है. तो ये S स्टैंड फॉर स्लिप, तो 2% की जगह पर अपन ने 0.02 लिखा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 100. एंड हियर द वैल्यू ऑफ D1 वी हैव इनपुट एज इक्वल टू 1096 mm. आप देख सकते हो D1 को अपन ने 1096 mm यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से अपने को D2 की वैल्यू 2416.68 mm मिल जाती है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे D1 का वैल्यू हम लोगों ने VP से फाइंड आउट किया, और DT का वैल्यू जो रेगुलर अपना फॉर्मूला होता है पाई d2 n2 इज इक्वल टू पाई d1 n1 into 1 minus s, ये फॉर्मूला हमने यूज करके D2 का वैल्यू कैलकुलेट किया था. ठीक है. नाउ F1 by F2, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, दूसरा रिलेशनशिप, लेट मी ओपन द डेटा बुक फॉर यू. ये देखिए यहाँ पे F1, ये पहला रिलेशन हो गया, F1 minus F2 is equal to PD by BP, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया. F1 by F2 is equal to e to the power mu theta करते वक्त थीटा निकालने के लिए अपने को D2 और D1 चाहिए रहता है, लेकिन साथ साथ में सेंटर डिस्टेंस भी चाहिए रहता है. ध्यान में रखो आप, सेंटर डिस्टेंस भी चाहिए रहता है. ऊपर से इस न्यूमेरिकल में ये ओपन बेल्ट है या क्लोज क्रॉस बेल्ट है, ये नहीं बताया गया है. दैट मीन्स ओपन बेल्ट हम लोग एज्यूम करते हैं और हम पाई माइनस करके सॉल्व करते हैं इसको. पाई माइनस D2 minus D1 डिवाइडेड बाय C. अभी अपने पास पता चल गया कि प्लस माइनस में से माइनस यूज करना है. D2 और D1 की वैल्यू आ गई. वी स्टिल डोंट हैव द वैल्यू ऑफ C. वी स्टिल डोंट हैव द वैल्यू ऑफ C, एंड दिस इज द सेकंड न्यू थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस न्यूमेरिकल. ठीक है, इस न्यूमेरिकल में आप देखोगे, तो मैं आपको और एक बार पढ़ा देता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सेंटर डिस्टेंस भी कहीं पे नहीं दिया हुआ है. ठीक है. नाउ सिंस in the formula of F1 by F2 is equal to e to the power mu theta, we require the value of theta. Let us calculate pi minus d2 minus d1 divided by c. तो हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, theta is equal to pi minus d2 minus d1 divided by c. But now we have the value of d2 d1, but we don't have the value of c. So for that what we do is we take help of table number 15-4. I will take you to table number 15-4. Let us go to table number 15-4. यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर डिस्टेंस है सीरियल नंबर 3 पे. तो क्या बोला हुआ है, सेंटर डिस्टेंस C मिनिमम जो है इट हैज टू बी 3.5 टाइम्स द लार्जर पुली डायमीटर. कितना होना चाहिए मिनिमम? 3.5 टाइम्स द लार्जर पुली डायमीटर. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंटर डिस्टेंस? इट इज इक्वल टू 7.5 मीटर्स. तो आपका जो सेंटर डिस्टेंस है वो मिनिमम 3.5 मल्टीप्लाइड बाय लार्जर पुली डायमीटर से लेकर 7.5 मीटर तक के आना चाहिए. तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3.5 इंटू लार्जर पुली डायमीटर. ठीक है, सो हमने कैलकुलेट किया 3.5 इंटू लार्जर पुली डायमीटर. हमने कितना निकाला यहाँ पे D2 का 2416.68. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 3.5 विद 2.416, अपने को मीटर में चाहिए इसके लिए, तो अपने को आप देख सकते हो, आई विल कैलकुलेट इट फॉर यू. 3.5 into 416, it comes out to be 8.456 meter, whereas the maximum permissible value is 7.5. तो हम लोग 8.456 ले सकते क्या? नहीं, हम लोगों को लेना पड़ेगा 7.5 मीटर. ठीक है, अपने को ऐसी वैल्यू चाहिए which lies between minimum and maximum center distance. अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए? which lies between minimum and maximum center distance. तो 8.456 तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में नहीं है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे. एंड देयरफॉर वी सिलेक्टेड C एज 7.5 मीटर एज पर टेबल नंबर 15-4. ठीक है. नाउ यहाँ पे हमने D2 का वैल्यू लिखा, D1 का वैल्यू लिखा. आप देखो अभी यहाँ पे D2 D1 जो है वो मीटर में लिखे गए हैं. क्यों? क्योंकि सेंटर डिस्टेंस मीटर में है. अगर ये mm में होता तो हम लोग D2 D1 की वैल्यू भी mm में लिख सकते थे. तो ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखना. तो हमको थीटा मिल गया 2.97. ठीक है. Now F1 by F2 is equal to e to the power mu theta जब हमको यूज करना है, तो थीटा की वैल्यू तो हमको 2.97 मिल गया. म्यू का वैल्यू निकालने के लिए लेट अस मूव टू टेबल नंबर 15-4 अगेन. वी नो इट डिपेंड्स ऑन द बेल्ट मटेरियल. कहाँ है
जस्ट अ मिनट। तो आप देख सकते हो कि बेल्ट मटेरियल इज लेदर और ये कास्ट आयरन है, तो आपका जो म्यू का वैल्यू है वो 0.35 अपने को मिलता है। ये अपन ने हर न्यूमेरिकल में 0.35 ही लिया है क्योंकि हर बार अपना मटेरियल लेदर और कास्ट आयरन के लिए है, तो म्यू का वैल्यू 0.35 हो गया। तो F1/F2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा, तो अपने को F1/F2 का दूसरा रिलेशनशिप मिल गया। दिस इज 2.97, ठीक है ना, दिस इज 2.97, तो एक दूसरा रिलेशनशिप मिल गया। पहला रिलेशनशिप ये था हमारा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 340.69 न्यूटन, दूसरा रिलेशन F1/F2 इज इक्वल टू 2.83, एंड फ्रॉम देयर वी आर इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2। आप देख सकते हो F1 का वैल्यू 526.86 न्यूटन आया, F2 का वैल्यू 186.17 न्यूटन आता है, ठीक है। उसके बाद में हम इनिशियल टेंशन कैलकुलेट करते हैं। ये सारी स्टेप्स वैसी ही है जैसे हमने अब तक सॉल्व करी है। तो जो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको सुटेबल मटेरियल फाइंड आउट करना है, वो हमने कर लिया। बेल्ट टेंशन हमने निकाल ली है, ठीक है। पुली शाफ्ट कीज जो है वो हम लोग पार्ट बी में करने वाले हैं, लेकिन हमको इनिशियल टेंशन की वैल्यू भी निकालनी है। इनिशियल टेंशन की वैल्यू निकाल ली है हमने। उसके बाद में वी कैलकुलेट डिजाइन स्ट्रेस SD फ्रॉम टेबल नंबर 15-5 एंड 15-6। लेट अस मूव टू टेबल नंबर 15-5 एंड 15-6। 15-5 से अपने को ये 3.8 की वैल्यू पिकअप करते हैं हम लोग, और 15-6 से हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं विच इज 0.9। तो ये दो वैल्यूज हमने पिकअप कर ली है, ठीक है, 3.8 और 90%। तो हमको मिलता है SD इज इक्वल टू 3.42 मेगापास्कल। फिर आपको पता है हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना पड़ता है विच इज रो VP स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -6। रो का भी वैल्यू हम इसी टेबल से फाइंड आउट करते हैं, टेबल नंबर 15-5 से, विच इज 0.97। हमको ये भी पता है कि डेंसिटी निकालने के लिए 0.97 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 970 मिल जाता है। VP स्क्वायर कर दिया तो हमको SCF 0.647 मिल जाता है। उसके बाद ये भी हमको, ये सारी चीजें की हुई है न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में। B इंटू टी में SI हम 1.5 मेगापास्कल एज्यूम करते हैं। B इंटू टी को FI/SI करके B इंटू टी की एक वैल्यू अपने को मिलती है विच इज 223.23, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक B इंटू टी की हमको और एक वैल्यू मिलती है विच इज एज पर दिस टेबल नंबर, एक मिनट में आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला, B into T is equal to F1 upon SD minus SCF. I think this calculation is not made in this. Is it done somewhere? 7 and 8, ठीक है। Let us, आगे में किया हुआ है शायद, from table number 15-5। एक सेकेंड, ऑल राइट, आई थिंक इसमें सॉल्व नहीं किया हुआ है, दैट इज एन एरर ऑन माई पार्ट। सो एक वैल्यू अपने को B इंटू टी FI/SI से मिलती है विच इज 223.23। दूसरी वैल्यू आपको पता है इस रिलेशनशिप से मिलेगी F1/SD माइनस SCF, एंड दैट इज द रीजन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ SD एंड SCF हियर। तो चलो करके देखते हैं। F1 का वैल्यू अपना आया हुआ है, F1 इज इक्वल टू 526.86। सो लिखते हैं, सबसे पहले SD माइनस SCF कर लेते हैं। SD इज 3.42 माइनस SCF इज 0.647 and it comes out 2.773. Let us divide 526.86 by 2.773 divided by 2.773, तो ये मिलता है अपने को 189.99, दैट मीन्स 190। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं F1 अपॉन SD माइनस SCF, तो अपने को मिलता है 190 mm², वेराज अगर इनिशियल टेंशन के हिसाब से निकालते हैं तो 223.23 mm² मिलता है। तो अपने को पता है कि अपने को लार्जर वैल्यू लेनी पड़ती है B इंटू टी की, तो लार्जर वैल्यू है 223.23 mm², ठीक है। और उसके बाद वी नो द स्टेप्स। हम लोग मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेल्ट यहाँ से एज्यूम करते हैं 0.02 टाइम्स डायमीटर टू 0.03 टाइम्स डायमीटर से। तो उसके हिसाब से अपने को पता है कि हमने एज्यूम किया कि T जो है वो 4.5 mm आता है, 4.5 mm के हिसाब से बेल्ट विड्थ 49.6 mm आती है। और इस तरह से हम लोग पार्ट A ऑफ द बेल्ट डिजाइन खत्म करते हैं।